Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Students, this is class 9 and we are studying lesson number 10. This is third lecture and we have studied the text of the lesson number 10, that is drug addiction. Drug addiction, students, is a very important lesson because there are many factors that make it important. It is very much useful for young people because most of the students, most of the teenagers fall victim of drug addiction. So I am spending more and more time in order to make you understand the drastic and fearful and dreadful effects of drug addiction that pose, and I want to make you understand all this. Students, as I have told you earlier that we have discussed earlier the text of the lesson, and this lecture is based on question and answer. And in this session, we will discuss different questions taken from the text, and we will try to find out answers of these questions from the text. This question and answer session will help you to understand more about the theme, about the purpose, and about the context of the lesson. So, students, this is lecture number 3. In the previous two lectures, we discussed the text of the lesson, and based on these previous two lectures, we will discuss different questions taken from the text and their answers. And students, I am your teacher, Abrar Hussain. Before going towards the question and answer session, I think it is better to make you understand that I hope that after reading this lesson, the students should be able to answer post reading questions. Students, we have studied the lesson, we have studied the text, we have translated it, we have listened translation. Most of the students have attended this lesson, and after that I expect that all of you are now able to answer of the questions. And after that, different words and phrases have been used in this lesson, and I hope that you will be able to understand those words and phrases, and you will know the meaning, and you will have definitely ability to use them in your own sentences. Another thing, students, different language structure have been used in this lesson. In the previous lesson, that was all is not lost was based on past indefinite, and we have observed in this lesson that the whole lesson have been written in simple present tense. Active and passive structure of present tense, present indefinite tense have been used in this lesson, and I hope that all of you will know very uh, actively, very in a very good manner, the structure of the lesson that have been used. You will be familiar with that, and I will discuss it with you while answering of the questions that will help you definitely to know the what sort of the structure of the sentence is. And after that, now we will move towards the answers of questions. Okay, students, these are two questions in front of you. The first question is, what treatment is available for the rehabilitation of drug victims? कि नशे के आदी अफराद के लिए किस तरह की दवा या किस तरह की तिब्बी सहूलतें उनके लिए क्लिनिक में फ्राहम होती है? रिहेबिलिटेशन मतलब उनके इलाज के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर उसको कहा जाता है जहाँ पर वो क्लिनिक जहाँ पे नशे के आदी अफराद की देखभाल की जाती है और उनका इलाज किया जाता है। तो इसका आंसर है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स प्रोवाइड कंप्लीट केयर एंड ट्रीटमेंट। रिहेबिलिटेशन सेंटर यानी नशे के आदी अफराद के इलाज के लिए जो क्लिनिक हैं, वो इनके इलाज के लिए उनको मुकम्मल
रहनुमाई फ्राहम करते हैं, मुकम्मल इलाज मुहैया करते हैं। दे प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट, उनको तिब्बी इमदाद या तिब्बी इलाज उनको मुहैया किया जाता है। एंड आफ्टर काउंसलिंग और विद पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज, उनके पेशेंट्स की फैमिली और पेशेंट्स के साथ मुशावरत के बाद, यानी मुशावरत के बाद उनको तमाम किस्म के इलाज की तिब्बी इलाज की सहूलतें फराहम कर दी जाती हैं। पेशेंट्स get their well after counseling and guidance of experienced doctors and nurses. Patients इन नर्सेज और डॉक्टर्स की मशावरत, तजर्बाकार नर्सेज और डॉक्टर्स की मशावरत और रहनुमाई से जल्दी सेहतयाब भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म काउंसलिंग? काउंसलिंग से क्या मुराद है? इट इज़ अ प्रोफेशनल एडवाइस और गाइडेंस, यानी काउंसलिंग ये इसका मतलब है मशावरत। ये एक पेशावराना नसीहत और रहनुमाई है दैट इज प्रोवाइडेड ऑन डिमांड, जो सिर्फ मुतालबा करने पर ही मुहैया की जाती है। मुतालबा कौन करता है? आप पेशेंट्स, यानी मरीज मुतालबा करते हैं। बाय द एक्सपर्ट डॉक्टर्स, जो एक्सपर्ट माहिर डॉक्टर से वो तवक्को रखते हैं, या माहिर डॉक्टर से वो जो मुतालबा करते हैं। यानी ये एक पेशावराना रहनुमाई है जो डॉक्टर से मरीज़ के मुतालबे कर उसको मरीज़ के मुतालबे पर उसको फ्राहम की जाती है। एक एडवाइस है और रहनुमाई है जो मरीज़ के मुतालबे पर माहिर डॉक्टर उसको प्रोवाइड करते हैं। द डॉक्टर्स आल्सो काउंसल टू अदर डॉक्टर्स। अब ये डॉक्टर्स जिनको जो मरीज़ की देखभाल कर रहे हैं वो दूसरे एक्सपर्ट डॉक्टर से भी राय लेते हैं अबाउट द स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ द एनी पेशेंट। अगर किसी पेशेंट को कोई ख़ास प्रॉब्लम हो तो उसके मतलब वो दूसरे डॉक्टर से भी रहनुमाई लेते हैं। यानी डॉक्टर्स और नर्सेज सिर्फ आपस में ही मशवरा नहीं करते, वो अगर उनको कोई बात समझ ना आ रही हो तो वो दूसरे डॉक्टर से भी मशवरा करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू एलिमिनेट ड्रग एडिक्शन? यानी ड्रग एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए हमारे माशरे में कौन से कदम जो हैं उठाए जाने चाहिए? वेरियस स्टेप्स कैन बी टेकन टू एलिमिनेट ड्रग एडिक्शन। इसके लिए मल्टीपल स्टेप्स की ज़रूरत है, जो उसको बहुत ज़्यादा स्टेप्स की ज़रूरत है, इकदामात करने की ज़रूरत है जो ड्रग एडिक्शन को, नशे की लत को ख़त्म करने के लिए उठाए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द गवर्नमेंट शुड स्टॉप द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रग्स। सबसे पहले तो गवर्नमेंट, तमाम दुनिया की हुकूमतों को चाहिए कि वो नशे की जितनी भी अद्वियात हैं, या चरस है, फ्यून है, भंग है, और जो कोई भी इसमें नशा करने वाली चीज़ है, उनकी सप्लाई और उनकी पैदावार को ख़त्म करें। फिर उसके बाद दूसरा काम जो हुकूमतों के करने का है, अवेयरनेस मूवमेंट शुड बी लॉन्च्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड अगेंस्ट ड्रग्स। फिर नशे के खिलाफ पूरी दुनिया में एक आगाही की मुहिम चलाई जाए। यंग एंड जॉबलेस पीपल शुड बी इंगेज्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज़। नशे नौजवान किसी भी माशरे में, किसी भी मुल्क के नौजवान और बेरोज़गार जो लोग हैं उनको मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ़ रखा जाए। Moral and ethical training should be provided to all youth for their better future. अब नौजवानों को उनकी अखलाकी तरबियत के लिए, उनको अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए उनकी अखलाकी तरबियत का भी बंदोबस्त किया जाए और ये तरबियत उनको प्रोवाइड की जाए ताकि वो मुस्तकबिल में एक आरामद शहरी बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विच टाइप ऑफ ड्रग एडिक्शन इज़ द मोस्ट डेंजरस? किस तरह की नशे की आदत जो है बहुत ख़तरनाक है? कौन सा नशा सबसे ज़्यादा खतरनाक है? इन माई ओपिनियन ऑल काइंड्स ऑफ ड्रग्स, तमाम किस्म का नशा जो है दैट इज़ अवेलेबल इन ब्लैक मार्केट फॉर विक्टिम्स, वो खतरनाक है। वेरियस काइंड्स ऑफ ड्रग्स आर अवेलेबल इन द ब्लैक मार्केट फॉर विक्टिम्स। नशे के आदी अफराद के लिए मुख्तलिफ किस्म के नशा जात ब्लैक मार्केट में अवेलेबल हैं, क्योंकि ये कारोबार जायज़ तो है नहीं, ये छुप छुपा के होता है, खुफिया तरीके से होता है, तो ब्लैक मार्केटिंग ही इसको कहते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ ड्रग्स आर डेंजरस। इसमें यह कि तमाम किस्म के नशे जो हैं, जो चीज़ें नशे के लिए यूज़ की जाती हैं, कुछ सरिंज से एक इंजेक्शन की शेप में, एक लिक्विड में नशा जो लगाते हैं, अपनी वेन में इंजेक्ट करते हैं हेरोइन को, कोई अपनी नाक से ज़रिए से, कुछ आइस के ज़रिए से, कुछ सूंघते हैं, कुछ अपने वैसे च्यू करते हैं, और कुछ ये हुक्का में या सिगरेट में पीते हैं, सिगार में पीते हैं, और कुछ इसको
یہ مختلف کھانوں میں بھی استعمال کر کے وہ ویسے لطف اندوز ہوتے ہیں وقتی طور پہ. بٹ اٹ بیکمز مور ڈینجرس. لیکن یہ زیادہ خطرناک کب ہوتی ہے؟ وین ون اسٹارٹ ڈیپینڈنگ آن اٹ. لیکن خطرناک اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بھی انسان اس پر مکمل طور پہ انحصار کرنے لگتا ہے. یعنی اگر جب وہ اس کو نہیں ملتی، کوئی نشہ نہیں ملتا، تو وہ مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے. اینڈ اٹ بیکم ایڈکٹیو آف اٹ. اور اس وقت انسان اس نشے کی لت کا شکار ہو چکا ہوتا ہے، اس کے ڈپینڈنٹ ہو چکا ہوتا ہے. یعنی اس کے نشے کے استعمال کے بغیر وہ بچ نہیں سکتا. تو اس طرح کا نشہ جو انسان جو کرتا رہے، چاہے وہ سگریٹ ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، یعنی جو اس کی جسم میں کوئی اس کی ضرورت، اس کے جسم کی ضرورت بن جائے اور اس کے بغیر وہ زندہ نہ رہ سکے، دیٹ از دا موسٹ ڈینجرس فارم آف ڈرگ ایڈکشن. اسٹوڈینٹس، نیکسٹ از وائی ڈو موسٹ آف دا ڈرگ ایڈکٹس ڈائی. بہت نشے کے بہت سارے عادی افراد جو ہیں وہ مر کیوں جاتے ہیں؟ لوگ بہت سارے برے کام کرتے ہیں لیکن نشے کے عادی افراد کیوں مر جاتے ہیں جلدی؟ اسٹوڈینٹس، اس کا آنسر ہے اٹ از انلکیلی فیکٹ. یہ بدقسمتی سے حقیقت ہے دیٹ آل آف دا ڈرگ ایڈکٹس ڈائی، کہ جتنے بھی نشے کے عادی افراد ہوتے ہیں وہ سب کے سب مر جاتے ہیں ایٹ اینی اسٹیج، کسی بھی مرحلے پہ، ان ارلی ایج، ابتدائی عمر میں. یعنی جب انہوں نے نشہ شروع کیا تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. دا ڈیپینڈنس آن ڈرگس اینڈ اٹس لانگ ٹرم یوز میکس اے یوزر ویک اینڈ سک مینٹلی اینڈ فزیکلی. یعنی جو کوئی بھی اس کا استعمال شروع کرتا ہے وہ نشہ اس کو جسمانی اور ذہنی طور پر مفلوج، کمزور اور بیمار کر دیتا ہے. اس وجہ سے وہ مر جاتے ہیں. A drug addict loses his health. ایک نشے کا عادی فرد اپنی صحت کھو دیتا ہے اینڈ امیونٹی، اور اس میں جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم، وقت کے ساتھ ساتھ، اینڈ ڈائز، اور وہ آخرکار مر جاتا ہے. یعنی کیا ہوتا ہے کہ یہ نشہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے جسمانی طور پہ. کھانے پینے کا ہوش نہیں ہوتا، سونے جاگنے کا ٹائم نہیں ہوتا، مفید کام وہ کرتا نہیں، اچھا وہ سوچتا نہیں، اچھی جگہ پہ نشے کا عادی فرد رہتا نہیں. نشہ کر لیتا ہے تو اس کو نہ دھوپ کی، بارش کی، نہ کسی بھی چیز کی اس کو پرواہ ہوتی ہے. گرمی سردی کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، اپنے پرائے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، محرم اور نامحرم رشتوں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ایسے افراد کی زندگی کوئی بامعنی بامقصد زندگی نہیں ہوتی. تو وہ بس کہیں پڑے پڑے کسی وجہ سے، کسی بیماری کوئی اور لگ گئی تو وہ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں دنیا سے. اوکے، what are the drawbacks of long term use of drugs. یعنی نشے کو اگر لمبے عرصے تک استعمال کیا جائے تو اس کے پھر کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کے پھر نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس، ڈرگس آر ڈینجرس. تمام قسم کے ڈرگس، پہلے بھی بات ہو چکی، وہ سب کے سب خطرناک ہیں. ویدر اٹ از یوزڈ فار شارٹ ٹائم اور لانگ، چاہے وہ مختصر وقت کے لیے استعمال ہوں، چاہے وہ لمبے عرصے تک استعمال ہوں. مختصر وقت کے لیے تو اسٹوڈنٹ سے یہ ہو ہی نہیں سکتے. جس نے ایک دفعہ نشہ شروع کر دیا وہ اسے پھر جان نہیں چھڑا سکتا، چاہے وہ سگریٹ ہو، سگریٹ میں ایک بھرا ہوا سگریٹ، چرس کا سگریٹ ہو، ہیروئن والا سگریٹ ہو، جیسے بھی ہو، ایک دو پیے گا پھر اس کے بعد عادی ہو جائے گا اور پھر وہ نہیں بچ سکے گا. دا یوز آف اٹ کمپلیٹلی ڈسٹروائے مینٹل پاور آف پازیٹیو اینڈ ریسپیکٹیبل تھنکنگ. ایک دوسروں کی احترام کرنے والی سوچ، اور دوسروں کا احترام کرنے والی سوچ اور مثبت سوچ کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور جسم مکمل طور پر، یعنی ذہنی طور پر انسان تباہ ہو جاتا ہے. مینٹل اینڈ فزیکل ویکنیس اوور پاور دا وکٹم. اب کمزوری اس کو چھا جاتی ہے، ایسے شکار نشے کے عادی فرد پر کمزوری چھا جاتی ہے اور اس کو آہستہ آہستہ ڈریج ایونچولی ٹورڈز دا گریو، اس کو قبر کی طرف لے جاتی ہے. تو اس کا سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے، جو میری سمجھ میں آیا ہے ڈرگ کا، کہ وہ یہ ہے کہ وہ موت ہی ہے. سب سے بڑا ڈرا بیک ہے کہ انسان جو ہے وہ، اس کے لیے کوئی راستہ بچتا ہی نہیں، کچھ ہوتا ہی نہیں. ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ انسان ویک ہوتا ہے، کچھ عرصہ، سال 2 سال ویک رہے گا، کمزور رہے گا، کمزوری بڑھتی جائے گی اور آہستہ آہستہ پھر قبر کے پاس جا کے قبر میں گر جائے گا. اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ہے کویشچن، واٹ آر دا فیکٹرز ریسپانسبل فار ڈرگ ایڈکشن. اب کون سے ایسے پہلو ہیں، کون سی ایسی وجوہات ہیں جو نشے کی لت کی وجہ بنتی ہیں؟ اسٹوڈنٹس، اس میں جینیٹک اینڈ انوائرمنٹل فیکٹرز، جینیٹک اور انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں. جینیٹک فیکٹرز کون سے موسٹلی کنسیڈرڈ ریسپانسبل فار دی انکریزنگ ٹینڈنسیز آف ڈرگ ایڈکشن. یعنی نشے کے بڑھتے ہوئے رجحانات کے ذمہ دار یہی 2 فیکٹر سمجھے جاتے ہیں.
اب जेनेटिक फैक्टर्स में क्या है, मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर एंड न्यूरोकेमिकल मेल फंक्शन इन द ब्रेन causes a person to be a drug addict. हमारे जिस्म में ऐसे हार्मोन्स और ऐसे मादे पैदा कीमिया मादे पैदा होते हैं, हमारा मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे अखराज करता है ऐसे मादों का कि जो नशे को इंसान को नशे की लत की तरफ ले जाते हैं। ये दिमाग में इंसान के पैदा होते हैं। अलॉन्ग विद इस लेकिन इसके साथ और दूसरे भी पहलू हैं। अलॉन्ग विद दिस एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज, और दूसरे माहौलियाती पहलू भी हैं, जैसे कि होम कंडीशन, घर के हालात, साइकोलॉजिकल, नफ्सियाती, इकनॉमिकल, माशी एंड सोशल इश्यूज, और बहुत सारे दूसरे समाजी इश्यूज, लेन देन के इश्यूज, ताल्लुकात के इश्यूज, समाजी इश्यूज आते हैं। टर्न्स वन टूवर्ड्स ड्रग्स इन ऑर्डर टू गेट टू लिव। ये मुश्किलात जो हैं इंसान को नशे की तरफ ले जाती हैं, जिनसे वो सुकून हासिल करने की कोशिश करता है। यानी वो सुकून हासिल करना चाहता है, वक्ती तौर पे भूलना चाहता है, तो वो उनको नशे की तरफ वो चीज़ें फिर ले जाती हैं। तो अब अमूमन होता है, दो बुरे दोस्तों की सोबत में कमज़ोर लोगों के जो पुअर एक सोशल सर्कल है इंसान का, उस सर्कल में भी रहते हुए इंसान बहुत सारी इस तरह की गलत आदतों और गलत हरकतों का शिकार हो जाता है, गलत लत में पड़ जाता है। तो इसलिए दोस्त बनाते वक्त, बाहर मोहल्ले से निकलते वक्त आसपास के लोगों पे नज़र रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है, स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इंसान कौन सा है और बुरा इंसान कौन सा है। अच्छाई और बुराई की तमीज़ होनी चाहिए। ये आपको माशरा सिखाता है, टीचर सिखाते हैं, पेरेंट्स सिखाते हैं, बहन भाई सिखाते हैं, घर के अफराद सिखाते हैं, रिश्तेदार सिखाते हैं। तो ये आपको रवैयों को समझना चाहिए। तो फिर यही रवैये समझते हुए आप अगर कमज़ोर नहीं पड़ते ना आप कहीं पे भी, तो आप इन बीमारियों का या इस किसी भी बुरी लत का शिकार नहीं होते। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, व्हाई डू यूथ फॉल एन इजी विक्टिम टू ड्रग एडिक्शन। अब नौजवान बच्चे, बढ़ती उम्र के बच्चे, 15-16 साल के बच्चे क्यों इतनी जल्दी नशे की लत का शिकार हो जाते हैं? तो इसकी रीज़न है, इसकी वजह है, क्योंकि वो इमेच्योर होते हैं, नासमझ होते हैं, और एडवेंचर के नाम पे और कोई अच्छी चीज़ और बड़ी चीज़ और शौक़ी मारने के लिए वो ऐसा कोई सिगरेट पीने लगते हैं, पहले से धोखे से कोई उनको नशे वाला सिगरेट पिला देता है, या ऐसी बुरी कंपनी में बैठना शुरू हो जाते हैं, तो वो उनको इसकी तरफ लगा देता है। अब इसका आंसर क्या लिखा है? यंग पीपल फॉल प्रे ऑफ ड्रग यूजर्स ईजिली। जो नशे के लत में मुब्तला लोग हैं, उनका शिकार जल्दी ये नौजवान लोग हो जाते हैं, बिकॉज दे बिहेव एज इमेच्योर, क्योंकि वो बिल्कुल ही इमेच्योर किस्म के तरह होते हैं, नासमझ होते हैं, और जो नशे के पहले कर रहे होते हैं वो बड़े चालाक होते हैं। एंड ट्रस्ट अदर्स, और वो जो नौजवान लोग होते हैं वो दूसरों पर जल्दी वो एतबार कर लेते हैं। अब इसका नतीजा क्या निकलता है? दे डोंट हैव टैक्ट्स टू नो अदर्स इंटेंशन। अब ये नौजवानों को ये तरीके भी नहीं आते कि दूसरों के इरादों को भांप सकें, जान सकें। दे डू एक्सपेरिमेंट्स इन द नेम ऑफ एडवेंचर एट फर्स्ट। पहले पहले वो अपने बुरे दोस्तों के साथ एक एडवेंचर के नाम पे कुछ वो गलत आदतों में हरकतों में पड़ते हैं, एंड बिकम विक्टिम ऑफ ड्रग सप्लायर्स, और जो नशा सप्लाई करने वाले होते हैं वो उनका शिकार बन जाते हैं। तो इनमें सबसे पहली चीज़ जो है बच्चों की नासमझी है। ताल्लुकात बनाते वक्त, मोहल्ले में, दोस्तों में मेल जोल रखते वक्त आपको उस जो दोस्त आपके साथ उठता बैठता है उसके सोशल सर्कल का पता होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों का देखें। और दूसरी चीज़ आप देखें, अब तक आपने स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं, इनमें सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ हुआ है। मसलन दे डू एक्सपेरिमेंट्स, वो तजर्बात करते हैं। इन द नेम ऑफ दे डोंट हैव टैक्टिस, उनके पास इतने ज़्यादा करतब नहीं होते। अब ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर जो है, जिसमें प्रेजेंट, जिसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, तो ये सिंपल चीज़ें होती हैं। और नेगेटिव में नॉट होता है, और या डू का इस्तेमाल, डोंट का इस्तेमाल नेगेटिव में, या डज नॉट का इस्तेमाल, और या इंटारगेटिव में डू का इस्तेमाल, या वाई डू, या वाई डिड, या हाउ डिड, ये हाउ डू सॉरी, ये इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन, वाई डोंट ड्रग एडिक्ट आर फैमिली मेम्बर्स रिपोर्ट देयर प्रॉब्लम्स। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स देखें, वाई डोंट, ये नेगेटिव है, नेगेटिव और इंटरगेटिव ये दोनों हैं क्वेश्चन। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। वाई डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड, डोंट नेगेटिव,
ड्रग एडिक्ट सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, आर फैमिली मेंबर्स, रिपोर्ट ये वर्ब है, देयर प्रॉब्लम ये इनका ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स ये देखें, ड्रग्स आर फॉरबिडन इन एनी इस्लामिक सोसाइटी। अब ये सवाल ये है कि नशे के आदी अफराद के मतलब ख़ानदान या उस नशे का आदी फर्द खुद बात क्यों नहीं करता किसी से अपने मसले पर काबू पाने के लिए? तो उसकी स्टूडेंट्स एक वजह है, हमारे माशरे में इसको अच्छा नहीं समझा जाता। ड्रग्स आर फॉरबिडन इन एनी इस्लामिक सोसाइटी। किसी भी इस्लामी मुआशरे में नशा जो है वो ममनू है। इस्लाम में नशा हराम है। यानी नशा क्यों हराम है? नशा सबसे पहले एहतराम ख़त्म करता है, इज़्ज़त, गैरत, हमीयत, हुर्रियत की समझ बूझ को ख़त्म करता है। सबसे पहले ये नशा जो है इंसान की सोच पे हमलावर होता है। यानी इसको अच्छे बुरे की, गलत सही की तमीज़ ही नहीं रहती, इंसान बिल्कुल जानवर की तरह बन जाता है। तो इसलिए सबसे पहले तो इसके हराम होने की वजह है। सेकेंड है, द ड्रग एडिक्ट डोंट यूज ड्रग्स ओपनली। और दूसरी वजह यह है कि चूंकि लोग नशे की लत को, नशे को तो सामने लोगों की इस्तेमाल नहीं करते हैं, कीप इट अ सीक्रेट, और इसको हमेशा खुफिया छुप कर इस्तेमाल करते हैं। जैसे भी आप में से बहुत से बच्चे कुछ जो सिगरेट पीते होंगे वो भी सामने तो नहीं पीते, उन दोस्तों के सामने पीते होंगे जो खुद सिगरेट पीते हैं, छुपा के पीते होंगे, पेरेंट्स से, दोस्तों से, टीचर से जो उनको मना करते हैं उनसे छुपा के पीते होंगे। वो किसी के सामने मानते भी नहीं कि हम ये काम करते हैं। तो इसलिए जब तक सामने प्रॉब्लम नहीं आती उसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो अब ये लोग ऐसा करते क्यों हैं ये देखना है हमें। सो टू अवॉइड शेम, अब उनको शर्म आती है कि किसी के सामने उनका राज खुलेगा, तो एंड फियर ऑफ बीइंग आउटकास्ट। और ये फिर नशे के आदी अफराद का मोहल्ले में, गली मोहल्ले में रहते हुए पता चलता है तो रिश्तेदार, गली मोहल्ले के लोग उनसे मिलना जुलना बंद कर देते हैं। और अब ये जो खौफ है उनको अर्जेस टू कीप द प्रॉब्लम सीक्रेट। अब वो उससे प्रॉब्लम को, अपने मसले को सीक्रेट रखने में, हैंडल द विक्टिम सीक्रेटली, और उसको जो नशे का आदी फर्द है उसको खुद से वो हैंडल करने की कोशिश में वो किसी को नहीं बताते। ये रीज़न है कि वो इसमें शर्म महसूस करते हैं कि क्या कहेंगे लोग, कि जब अब उन्हें पता चलेगा कि मेरा बेटा या मेरा बच्चा या कोई फिर दोस्त वो नशा करता है, या इस लत में पड़ गया है, या उसने ये नुकसान कर दिया है नशे की वजह से। तो ये सारी चीज़ें चूँकि इनको अच्छा नहीं समझा जाता तो इसलिए लोग इसका ज़िक्र नहीं करते। लेकिन ख़ास तौर से जब समझना चाहिए कि जब कोई बीमारी में मुब्तला हो गया तो उसका इलाज नहीं होगा तो वो ठीक कैसे होगा, ये आपको स्टूडेंट्स समझना है। नेक्स्ट है, वाई क्योरिंग ड्रग इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। अब ये दूसरे मरीज़ों की निस्बत इस नशे के आदी फ़र्द का इलाज क्यों बहुत बड़ा मसला है। इस नशे के आदी अफराद का बहुत मसला, इसलिए ये वैसे तो सेहतमंद होता है, इसके मसला इसकी जिस्मानी सेहत में देखने में तो नहीं होता, लेकिन जहनी सेहत में बहुत ज़्यादा मसला होता है। ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग एडिक्ट आर हिज क्योर इज़ नॉट ईजी। ये ड्रग नशे के आदी फर्द का इलाज और इसकी देखभाल या इसको ट्रीट करना कोई आसान काम नहीं है, बिकॉज द विक्टिम कैन नॉट बी ट्रस्टेड। क्योंकि एक तो सबसे पहली बात यह है कि नशे के आदी फर्द पर एतबार ही नहीं किया जा सकता, वो अपनी जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक कभी भी बदल सकता है। मोस्ट ऑफ द ड्रग एडिक्ट कैन नॉट कीप दैम रेडी फॉर ट्रीटमेंट। बहुत सारे नशे के आदी अफराद वो तो खुद को तैयार ही नहीं कर पाते कि वो बीमार हैं और इलाज करवाएं, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते। एंड दे डोंट थिंक दैम सिक और एडिक्टिव, और खुद को वो एडिक्टिव या बीमार भी नहीं समझते। द विक्टिम हैज़ टू कीप अंडर कंटिन्यूस वॉच ड्यू टू फियर ऑफ रिलैप्स। अब ऐसा कोई अगर इलाज की तरफ आ भी जाता है तो वो उसको, विक्टिम को फिर उसकी मुसलसल देखभाल करना पड़ती है, और ताकि वो कहीं दोबारा से नशे की तरफ ना वापस चला जाए। सो दीज इश्यूज मेक ए डिफ़िकल्ट। इस तरह के इश्यूज जो हैं वो इसको मुश्किल बनाते हैं, ट्रीटमेंट को, इलाज को मुश्किल बनाते हैं, और ज़्यादा इसमें तकलीफ़ का या प्रॉब्लम का सबब बनते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थे, आई हैव सेलेक्टेड सम क्वेश्चंस फ्रॉम द लेसन and answer, and these have been written according to my wit, according to my understanding. And after that, students, I have done the work on my part. मैंने अपने हिस्से का कुछ काम कर लिया, and now this is homework for you. There are questions, 6 questions, and taken from the text, and these questions don't exist in your exercise.
So don't think that after completing this homework exercise, your work will be done. Your work will be undone. You will have to do another exercise of questions. So this practice, right, finding questions and writing answers of questions again and again, will make you understand that how to answer, how to write, and along with this, you will understand the theme and purpose of the lesson. If you discuss it again and again, बार बार इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, सवालों के जवाब ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे। ये मैंने आपके सामने एक सेशन रखा कि आपने इस तरह से क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ये आपके लिए एक प्रैक्टिस थी, एक प्रैक्टिस सेशन था। अब देखें आप नेक्स्ट, आपने इन क्वेश्चंस के आंसर खुद से करने हैं। क्वेश्चंस में आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन 1, व्हाई रिहैबिलिटेशन सेंटर्स आर द बेस्ट चॉइसेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग एडिक्ट्स। नशे के आदी अफराद के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स ही क्यों बेहतरीन जगह हैं? इसलिए कि वहाँ पे उनका इलाज होता है, उनको हर सहूलत फराहम की जाती है। वहाँ पर सिर्फ नशे का इलाज करने वाले ही साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, ये वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, और सिर्फ इसी ख़ास फील्ड से मुतल्लिक़ डॉक्टर्स और नर्सेस होते हैं जो उनका इलाज करते हैं, जो हर वक्त वहाँ पे मौजूद होते हैं, और उसी की उनकी नशे के आदी अफराद की ज़रूरियात के मुताबिक ही ऐसे क्लिनिक या रिहैबिलिटेशन सेंटर को बिल्ड किया जाता है। तो इसलिए ये बेस्ट चॉइस है। व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर द स्पीडी रिकवरी ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स। नशे के आदी अफराद की तेज़ तरीन सेहत याबी के लिए कौन सा काम ज़रूरी है? अब सबसे पहले तो नशे के आदी अफराद को तैयार होना चाहिए, वो तैयार हों। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आती है जो स्पीडी रिकवरी कर सकती है, वो ये है कि वो डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करें, और डॉक्टर्स को और फैमिली मेम्बर्स को हर चीज़ वो बताएं जो वो उनको पता है, और जो उनके अंदर है, जो डॉक्टर सवालात करें वो सच सच उनके जवाब दें। तो ये रिकवरी के लिए ये बेहतर है। आपने अपने आंसर्स में इस पॉइंट को ज़रूर लिखना है, और नेक्स्ट फर्दर पॉइंट्स भी आपको उससे एलेबोरेट करें, मैं सारे नहीं बताऊंगा। हाउ डज काउंसलिंग प्ले अ वाइटल रोल इन रिहैबिलिटेशन प्रोसेस। अब इंसान की सेहत याबी के अमल में मशावरत कितना किरदार अदा करती है? भाई सारा किरदार ही मशावरत का होता है। मशावरत ही ऐसे मरीज़ को मजबूत बनाती है जिस्मानी तौर पे भी, और उसकी विल पावर को बढ़ाती है। काउंसलिंग ही विल पावर बढ़ाती है और विल पावर उनमें पैदा करती है। अगर कोई मरीज़, अगर कोई ड्रग एडिक्ट तैयार ही ना हो इलाज के लिए, तो फिर रिहैबिलिटेशन प्रोसेस उसका होगा ही नहीं, अमल ही नहीं होगा इस पे। तो सारा किरदार ही काउंसलिंग का है। डॉक्टर्स जो हैं वो उनको अपने बड़े अफेक्शनेट वे, इन एन अफेक्शनेट वे, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, मुशफ़क़ाना अंदाज से उनकी मरीज़ों का इलाज करते हैं, और उनकी काउंसलिंग करते हैं, और उनको एक कामयाब और मिसालों के ज़रिए से और मोटिवेशन, जो उनको स्टोरीज़ के ज़रिए से या जैसे भी उनका कोई तरीक़ेकार हो, उसके ज़रिए से वो उन मरीज़ों को मोटिवेट करते हैं कि वो ठीक होने की तरफ जाएँ। तो वो उनको ठीक भी करते हैं, उनका इलाज भी कर लेते हैं। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ थ्रेट डू ड्रग एडिक्ट्स पोज टू द सोसाइटी? सॉरी स्टूडेंट्स, नशे के आदी अफराद माशरे के लिए किस किस्म का ख़तरा है? अब ख़तरा ये तो हैं, फैलाते भी हैं ये। What sort of threat do drug addicts pose to the society? सोसाइटी के लिए किस तरह से ख़तरा है ये ड्रग एडिक्ट्स? एक सबसे बड़ा ख़तरा तो ये खुद है कि ये इतने लाखों में 50 मिलियन पीपल पाकिस्तान के, दे आर विक्टिम टू ड्रग्स, वो ड्रग्स का, नशे का शिकार हैं। वो तो खुद सारे नाकारा हो गए, बेकार हो गए, तो इसलिए वो खुद से एक थ्रेट है। दूसरी चीज़ ये देखें कि ये पैसे भी ज़ाया करते हैं, चोरी भी करते हैं, और बुराइयों का भी डिफरेंट किस्म की ब्राइब्स का भी ये माशरे में वजह बनते हैं। अपनी नशा पूरा करने के लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म की गलत हरकतें भी करते हैं, चोरियां करते हैं। तो थ्रेट तो हैं, और बाज़ औक़ात तो बहुत सारी ऐसी सूरत हाल में नशे का आदी फ़र्द कत्ल भी कर देता है। इस तरह के थ्रेट्स तो हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ड्रग एडिक्ट्स? अब किस तरह के मसाइल जो ड्रग एडिक्ट को पेश आते हैं? ड्रग एडिक्ट को बहुत किस्म के मसाइल पेश आते हैं।
सबसे पहले तो उसका अपने जिस्म पे कंट्रोल नहीं होता, अपनी सोच पे कंट्रोल नहीं होता, उसको ना अपने खाने की परवाह होती है, ना अपने सोने जागने उठने बैठने का टाइम उसका पता होता है। वो कहीं भी पड़ा, सड़क के किनारे, घर के किनारे, घर के कोने में, किसी भी जगह पे, पार्क में भाई ये ऐसे लोग पाए जाते हैं। ना इनको ये तमीज़ होती है कि ये अच्छी जगह है, गंदी जगह है, साफ़ जगह है, बारिश है, धूप है, किसी किस्म की भी नहीं होती, और ये मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात का ये शिकार होते हैं। तो ये तो सहूलतें वगैरह होगी ना। अब इसके अलावा और भी किस्म की चीज़ें हैं कि माशरे के लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करते, इनको हकारत की नज़र से देखा जाता है। वो कहीं भी मोहल्ले में देखें तो यही देखते हैं, वो जहाज़ आया ही। तो ये चीज़ें जो है ना, ये इनको इनको डिस्करेज भी करती हैं, इनको इनकरेजमेंट तो खैर इनकी नशे के लिए तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन इनके साथ प्यार करके ही इनको हम इन दोबारा से नॉर्मल मैन बनाने की तरफ तवज्जो दे सकते हैं। इनको दोबारा से ही नॉर्मल पर्सन बनाया जा सकता है। तो इनसे नफ़रत नहीं की करनी चाहिए, बल्कि इनके प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम्स इनके आप मेंशन करेंगे यहाँ पे। स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी फाइट मोर इफेक्टिवली अगेंस्ट द मीनेस ऑफ ड्रग एडिक्शन? यानी खतरे से, ड्रग एडिक्शन के खतरे से हम इफेक्टिवली किस तरह से निपट सकते हैं? कुछ सजेशंस मैंने पहले भी दी थी, आप अपनी खुद से सोचें और सजेशंस खुद आप लिखें अपनी, कि कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं जो हम लें तो हम फिर इफेक्टिवली इस ड्रग एडिक्शन के ख़तरे से हम निपट सकते हैं और अपनी यूथ को हम महफूज रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट टुडे, एंड नाउ थैंक यू वेरी मच. We will continue the remaining session tomorrow. We will continue with the question and answer session and for tomorrow. Thank you very much, students.